Okay, so welcome all. Uh, so let resume our topic. So before break, we were talking about mainly we were focusing on this uh, protostomia versus deuterostomia. We were talking about the protostomia versus deuterostomia, and yeah, this slide. We have talked about we have talked about this. We have talked about we. I have also shown this diagram. I have shown this. Uh, just 1 second. So we in last lecture we talk about mouth is from blastopore, then this anus arise here, then coelom can be of three kind: pseudocoelom, sorry, acoelom, true coelom, or pseudocoelom. Here only true coelom. Cleavage can be spiral and determinant. Here cleavage can be radial or and indeterminate. Larva here trochophore, here bipinnaria or tornaria larva. So you see the diagram. This is the diagram of the uh, trochophore larva, and these are the diagram of the tornaria larva. This is the slide of the bipinnaria larva. Then one more terminology is there. In case of coelomate, if it is the protostomia, the coelom is formed by the schizocilous theory. And if it is deuterostomia, it is anterocilous type of coelom. So coelom formation. Now you focus here. Even in this slide, it is not well marked. They try to, but let me draw one more diagram so it will be easier to you. I need a drawing board for that. Clear. People are waiting. Just 1 second. People are waiting. Okay. So, okay. So, suppose this is animal, this is the gut, this is the gut, and if these, so if this red line is if mesoderm, if this entirely red is schematic representation, if this red line is mesoderm, so what happen if the coelom is formed
just 1 second again. Okay, so this is the lead line. Now I'm doing one thing. I am drawing another line with white mark. Okay, suppose, okay, साइज थोड़ा कम करना पड़ेगा इसका. Okay, okay. So suppose this white line fragment. This way, fragmentation in mesoderm occur. So this white space is there now in between red space. So what you see, what you are saying that mesoderm is now getting splitted. So ultimately what happens, ultimately what will happen? So ultimately, this. So first क्या हुआ, mesoderm के अंदर split हुए और सारे split जुड़ गए. तो mesoderm क्या हो गया, दो हिस्सों में बढ़ गया, आगे का, अंदर का, बाहर का. और जो mesoderm के बीच में जो कैविटी आ गई, उसको हम क्या लेबल दे देंगे? mesoderm के बीच में जो कैविटी आ गई, उसको हम नाम दे देंगे, ये हो गया आपका सीलोम. यहां पे अंदर की तरफ अब अंदर की तरफ क्या है, ये पूरा मैं आपको भर दूं तो आपको कंफ्यूजन ना हो. ये सीलोम है, ये मेसोडर्म है, अंदर भी मेसोडर्म. आप देखिए, आपको डायग्राम एकदम समझ में आ जाएगा. अच्छा, ये जो है आपका अंदर वाला जो कैविटी है वो गट है. अब बाहर भी मेसोडर्म इस तरह से हो गया, बाहर भी मेसोडर्म था. ठीक है, अब क्या हुआ था, एक्चुअली क्या हुआ, अभी मेसोडर्म के बीच में से ही जितना भी रेड है वो मेसोडर्म ही मेसोडर्म था, और उनके बीच में जो स्प्लिटिंग हुआ. ओके, तो ये आप देखिए, अब ये हमारे पास दो कैविटी आ गई. तो हमारे पास ये है, वो तो गट है, ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, ये गट है. और ये जो कैविटी दूसरी बची वो है आपका सीलोम. तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्टोडर्म, बाहर का वायोलेट लाइन है वो एक्टोडर्म है, अंदर का वायोलेट लाइन है वो एंडोडर्म है. ये एंडो है, ये जो है वो एंडोडर्म है. दिस इज एक्टोडर्म. अब समझ में आ गया. तो आपको स्प्लिटिंग कहां पे हुआ, पहले मैंने क्या किया, वो रेड कलर का जो जोन है पूरा रेड कलर का हिस्सा बनाया और उसको स्प्लिट कर दिया. तो जो स्प्लिट हुआ, उससे जो मेसोडर्म का स्प्लिट होने से जो हो रहा है, उसको अगर इस तरह से सीलोम फॉर्मेट हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, इट इज काइजोसिलस टाइप ऑफ सीलम. अनदर मैकेनिज्म इज दैट, अब मैं फिर से दूसरा डायग्राम बनाता हूं स्कीमेटिक. ये गट है, ये एंडोडर्म है. मान लीजिए गट और बीच गट में इस बार लॉन्जिट्यूडनल वे में बनाता हूं. नहीं है, पेन चाहिए हमें. Now this is gut and फिर से मेसोडर्म हम रेड कलर से बनाते हैं.
मान लीजिए ये सब मेसोडर्म है, ठीक है, ये पूरा एरिया मेसोडर्म से भरा हुआ है। ये एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है आपको समझाने के पर्पज से, ठीक है। Now what will happen, then what happens actually, the gut है, that gut gives certain outfolding, gut gives this certain outfolding। इसको और छोटा करता हूं, दिस वे, यहां पे देखो, gut gives certain outfolding, गट में से तो आउटपॉकेटिंग होता है। अल्टीमेटली दिस आउट पॉकेट ऑन आइदर साइड यूनाइट, फिर जो सारा जो आउटपॉकेटिंग है वो यूनाइट हो जाता है। तो बीच में तो अल्टीमेटली एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा फा नहीं रहा जैसे बताना, बोर्ड होता तो अच्छा होता, फिर भी मैंने ट्राई किया। तो जो आउटपॉकेटिंग हो रहा है, मैं तो यहाँ से समझा दूं, आउटपॉकेटिंग हो रहा है, गट है वो क्या कर रही है, आउटपॉकिंग होके बाहर जा रही है, वो रेड कलर के जोन में जा रही है, और उसके गट के आउटपॉकेटिंग होते 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 फिर सारे आउटपॉकेट अलग हो जाते हैं। एक पॉकेट ये अलग हो गई, अलग हो गई, अलग हो गई, अलग हो गई, तो गट से आउटपॉकिंग अलग हो, और सारे आउटपॉकिंग आपस में जुड़ गए। तो यहाँ पे गट की दोनों साइड पे, गट की दोनों साइड पे क्या हो रहा है, पॉकेट बन गए, एक छोटे छोटे पॉकेट बने, वो आपस में जुड़ गए, और अल्टीमेटली वो पॉकेट ऊपर की और नीचे की ओर जुड़ गए। तो अब क्या रह जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, मेसोडर्म स्प्लिट हो जाता है। तो मेसोडर्म फिर से स्प्लिट हो गया। तो आउटपॉकेटिंग, ये आपको एक्चुअली मेरा टॉपिक नहीं है, ये आपको थर्ड यूनिट का टॉपिक है, फिर भी यहाँ पे टर्मिनोलॉजी है इसलिए मैंने ट्राई किया है समझाने का। तो बाहर जाते हुए जो आउटपॉकेटिंग हो रहा है, तो उससे जो बनता है वहां पे भी आपको अल्टीमेटली रिजल्ट तो यही आएगा कि सिलोम फॉर्म, फिर वो सारे आउटपॉकेटिंग इकट्ठा हो जाते हैं और बन जाता है सिलोम, एक और कैविटी बन जाती है। तो गट के आउटपॉकेटिंग से जो सिलोम बनता है, एंटेरो, एंटेरो मींस गट, तो गट के आउटपॉकिंग होने के बाद जो सिलोम बनता है उसको हम बोलते हैं एंटेरोसिलस सिलोम। यहाँ पे भी दिया होगा डायग्राम में, देखते हैं। यहाँ पे देखो उन्होंने बताया हुआ, अरे कहाँ गया, ये देखो, ये गट है, इनके आउटपॉकेटिंग बताए हैं, और आउटपॉक, ये आउटपॉक हुआ, यहाँ पे एक आउटपॉकेटिंग हुआ, अल्टीमेटली येलो येलो पोर्शन जुड़ जाएगा और यहाँ पे सिलोम बन जाएगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है डायग्राम, मैं जो जिस तरह समझा रहा था वो और इजी था। तो यहाँ पे अल्टीमेटली आपका एक दूसरा कैविटी जनरेट हो जाए, वो है सिलोम। तो मेनली देयर आर टू मैकेनिज्म, स्काइजोसिलस एंड एंटेरोसिलस वे, जिससे गट बनता है, सिलोम बनता है। अभी बात मत करो, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड दी द टू मैकेनिज्म फॉर दी सिलोम फॉर्मेशन। तो अब ये थोड़ा स्लाइड देख लेते हैं, फिर उसके बाद का थोड़ा उसके जो कैटेगरी है वो भी हम ले लें आज ही, तो ये टॉपिक खत्म हो जाए। तो प्रोटोस्टोम की बात करें तो प्रोटोस्टोम में क्या है वो देखो, इसमें अलग से भी मैंने लिखा हुआ है कि प्रोटोस्टोम जो है, तो यहाँ पे क्या है, द मेजॉरिटी ऑफ सिलोम, the majority of the coelomic invertebrate develop as a protostome। most of the जो सिलोमेट इन्वर्टिब्रेट एनिमल हो, कौन किसमें आएंगे, प्रोटोस्टोमिया। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि डिट्रोस्टोमिया में सिर्फ आपका एक ही फाइलम है इन्वर्टिब्रेट का, वो है एकाइनोडर्माटा। पढ़ा रहा हूँ मैं। फिर ये जो डिट्रोस्टोमिया है, फिर जो ड्यूटेस्टोमिया है उसमें मोनली कॉर्डेट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ब्लास्टोपोर, बातें मत करो, ब्लास्टोपोर जो है वो ब्लास्टोपोर में से एनएस बन रही है, ठीक है। सो डिट्रोस्टोम, डिट्रोस्टोम यहाँ पे फिर से बताया हुआ है, डिट्रोस्टोम है विंटर
Also show indeterminate development in which each of the cell of the 8-cell embryo, if separate, remain capable of developing as complete organism. In case of determinate cleavage, fate is already decided at zygote or दो 2-cell stage already. तो वो बात ऑलरेडी मैं कर चुका हूं. अब इसके बाद के स्लाइड में हम जाएं. अब आपको समझ में आ गया है कि स्काइजोसिस एंड्रोसिस भी खत्म हो गया. तो आपका जो अभी हमने क्या देखा, ग्रेड डिवीजन देखे. डिवीजन कौन से देखे हमने अभी? हमने कौन सी कैटेगरी देखी? ये वाली. ये क्या था? हाँ, ग्रेड बायलेटरी की जो डिवीजन है वो हमने कंप्लीट किए. तो अब आपकी जो नेक्स्ट कैटेगरी आ रही है वो है इनके नीचे की. प्रोटोस्टोमिया को 3 हिस्सों में बांटा जा रहा है. प्रोटोस्टोमिया अब 3 है, प्रोटोस्टोमिया और डिटेरोस्टोमिया. तो प्रोटोस्टोमिया में 3 कौन से हैं? प्रोटोस्टोमिया के 3 कौन से हैं? प्रोटोस्टोमिया के 3 कौन से हैं? तो हम देखते हैं यहाँ पे. जस्ट वन सेकंड, क्या हो रहा है? गड़बड़. ओके, प्रोटोस्टोमिया में आएगा यहाँ पे 1 2 3. एक आएगा प्रोटोस्टोमिया में एसिलोमेट. देयर आर 4 एसिलोमेट. pseudocoelomate, and then third is yet to explain you lophophorate. Lophophorate coelomate, and the fourth category is schizocilus. SCHI, schizocilus coelomate. So these are the 4 subdivisions of protostomia, and deuterostomia has only one, and that is the enterocilus. इसके पीछे आपको वर्ड लगाना है एंटेरोसिलस. इसके पीछे वर्ड लगाना है सिलोमेट. एंटेरोसिलस सिलोमेट. So these are the enterocilus coelomate and they are schizocilus coelomate. Acoelomate, pseudocoelomate, lophophorate coelomate and schizocilus coelomate. Say for example, मैं आपको बताऊं एनेलिडा में अर्थवर्म. आपको जैसे कि अर्थवर्म है उसको क्लासिफाई करना है. क्लासिफाई अर्थवर्म अप टू क्लास गिविंग रीजन. तो कैसे होगा? डोमेन यूकेरिया, किंगडम. डोमेन यूकेरिया तो उसके कैरेक्टर लिख दिया आपने. कौन कौन से कैरेक्टर आते हैं? किंगडम, एनिमेलिया, एनिमल में क्या क्या आता है वो लिख दिया. सब किंगडम, मेटाजुआ तो उसके कैरेक्टर लिख दिए. फिर क्या आता है? बीजीडी याद रखना है. ब्रांच होगा कि आपको मेटाजुआ याद आएगा, यू मेटाजुआ, लेकिन यू मेटाजुआ टर्म क्या है वो याद नहीं आएगी. तो आपको क्या रखना है? बीजीडी, ब्रांच, यू मेटाजुआ, मल्टीसेल्युलर एनिमल विथ वेल डेवलप्ड टिश्यू. ग्रेड बाइलेटेरिया, डिवीजन प्रोटोस्टोमिया, सब डिवीजन स्काइजोसिलस सिलोमेटा, फाइलम एनेलिडा, क्लास ऑलिगोकीटा. सो दिस वे आप सारे टैक्सॉन के कैरेक्टर देते जाएंगे तो आपका 7 मार्क का क्वेश्चन खत्म होगा. तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ये 3 ये 4 की. अब हम यहाँ पे एसिलोमेट क्या है वो एक्चुअली मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ प्लेटिंग एलिमेंट्स का स्लाइड बता के आपको. सूडोसिलोमेट हमने वर्कआउट कर लिया. स्काइजोसिलस एंड्रोसिलस क्या है वो वर्ड भी हमने समझ लिए. अब इनके अंदर कौन कौन से फाइलम आ रहे हैं वो फोटोग्राफ में आपको कोटपाल की बुक में से बता देता हूं. और ये लोफोफोरेट मेनली क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं. तो हमारा ये टॉपिक
आउटलाइन क्लासिफिकेशन का कंप्लीट हो जाएगा। और देख रहे थे यहाँ पे स्लाइड में कुछ रह जा रहा है तो वो हमें पता चल जाए, कुछ टॉपिक बाकी तो नहीं रह गया था डिस्कशन में। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, मैंने एसिलोमेट, एसिलोमेट क्या है, जस्ट वन सेकंड, एसिलोमेट क्या है, तो ये यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे बॉडी एसिलो में यहाँ पे ट्रू फ्लूइड कैविटी, ट्रू सिलोम, एसिलोम में कौन सी कोई कैविटी होती ही नहीं है। यहाँ पे 3 जर्म लेयर तो होते हैं लेकिन कैविटी नहीं होती। ये डायग्राम हमने देख लिया। सीरोसिलोमेट क्या है वो हमने समझ लिया कि दे आर ऑर्गेनल विद द बॉडी कैविटी दैट इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम द मेसोडर्म एज इन ट्रूसिलोम। मेसोडर्म में से हो तो ही ट्रूसिलोम कह सकते हैं। अगर ब्लास्टोसिल में से बॉडी कैविटी आ रही है तो वो ट्रूसिलोम नहीं है। सिलोम इज नॉट लाइन्ड बाय मेसोडर्म एंटायरली, तो वो भी सूडोसिलोम हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे रेफरेंस मैंने दे दिए हैं, ये सारी जगहों से मैंने रेफरेंस कलेक्ट किए, कहीं पे से डायग्राम लिया है, कहीं पे थोड़ा कंटेंट लिया है। और मेनली पढ़ाने का मेन बुक है वो है आर एल कोटपाल का बुक है। मैंने 11th एडिशन यूज किया हुआ है। अब तो और लेटेस्ट में उससे भी ज्यादा आगे की बुकें आ रही हैं। अच्छा, अब ये स्लाइड में कुछ रह तो नहीं जा रहा, मैं देख रहा हूँ। हाँ, तो डिटेल ऑलरेडी मैंने यहाँ पे वर्कआउट किया हुआ था, मैंने खुद डिवीजन एंडोसिलोमेट होता है और यहाँ पे इनके 4 जो है सब डिवीजन है, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट, ये ऑलरेडी स्लाइड था मेरे पास। प्रोटोस्टोमिया के 4 हैं, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट, लोफोफोरेसिलोमेट एंड स्काइजोसिलोमेट। अब एसिलोमेट क्या है मैंने समझा दिया, उसके सारे कैरेक्टर बता दिए। सूडोसिलोमेट क्या है वो हमने समझा दिया, लोफोफोरेट समझाना का बाकी है, और स्काइजोसिलोमेट क्या है वो मैंने समझा दिया। अब हमारा कितना बाकी रहता है, लोफोफोरेट सिलोमेट क्या है वो, और इनके लिए कौन कौन से फाइलम आ रहे हैं वो। अच्छा, मैं दूसरी पीडीएफ खोल रहा हूँ, उससे हमें ये समझ में आ जाएगा। इसके पहले इसके रेफरेंस आपको देखने हैं तो देख लो। These are the references. Okay. Now I'm moving towards another PDF. This is actually directly picture I have taken from the Kotpal book. Now you see in protostomia, प्रोटोस्टोमिया है तो उसमें एसिलोमेट आता है, प्रोटोस्टोमिया, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट और एसिलोमेट में कौन से फाइलम आते हैं, मेनली आपको याद रखना है प्लेटीहेल्मिन्थस। ये याद नहीं रख पाए तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि 30 फाइलम की लिस्ट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेनली आपके जो बड़े बड़े हैं वो आपको याद रखने हैं, एसिलोमेट और प्लेटीहेल्मिन्थस। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको आउटलाइन क्लासिफिकेशन समझा रहा हूँ। सूडोसिलोमेट में मेनली कौन सा आएगा, एस्केलमिन्थस सब फाइलम आता है। तो इसमें ये सारे ये जो हैं वो एस्केलमिन्थस के ही हैं। नहीं, यहाँ पे देखो ये फाइलम, ये सारे माइनर फाइला कहते हैं, एंटोप्रेक्टा, एकेंथोसेफाला, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपके सिलेबस में जो सूडोसिलोमेट है वो है एस्केलमिन्थस, उसमें भी एस्केलमिन्थस सुपर फाइलम है, उसके अंदर कैटेगरी है रोटिफेरा, रोटिफेरा। फिर ये सारे देखिए, ये फाइलम लेके नंबर लेके 10 से लेके रोटिफेरा से लेके फाइलम नीमेटोडा, ये नीमेटोफोरा, ये सारे एस्केलमिन्थस सुपर फाइलम में आते हैं। उसमें आपके सिलेबस में है नीमेटोडा, तो नीमेटोडा सब फाइलम है वो है आपका सूडोसिलोमेट। तो नीमेटोडा में क्या आता है, एसके, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। एसके जो स्लेंडर 30,000 स्पीसीज है, स्लेंडर सिलेंड्रिकल होते हैं, क्यूटिकल का लेयर होता है। तो ये सब उसकी जो जानकारी है वो आप थोड़ा 1-2 लाइन लिख सकते हैं नीमेटोडा के बारे में, ठीक है। तो ये आप उसको नंबर याद सकते हैं कि अराउंड 10, 8 to 10 5 कितने हैं, 8 से लेके 6 या 7 इसमें आते हैं, वो आप नंबर याद रख सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे आप याद रखने की जरूरत नहीं है, रख भी नहीं पाओगे। देन लोफोफोरेट सिलोमेट जिसकी हम बात कर रहे थे, ये एक्चुअली ये जो ग्रुप है, ये इसका पोजीशन करना उनको बहुत ही तकलीफ वाला था। पहले इन्होंने इसको डिट्रोस्टोमिया में डाल लिया था साइंटिस्टों ने, फिर बाद में इसको फिर से इसको प्रोटोस्टोमिया में लेके आए,
क्योंकि इसका जो सिलोम फॉर्मेशन है ना, इसका थियरी ऐसे हमने प्रोटोस्टोमिया में देखा जाए तो क्या है, मैंने क्या बताया कि भी सिलोम होता है तो हमें स्काइरोसिलस होता है। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से एक एक्सेप्शन आ रहा है। यहाँ पे फिर से उन्होंने क्या लिखा है, इट कैन बी स्काइरोसिलस और एंट्रोसिलस। है किसमें, ये प्रोटोस्टोमियो का ही है, ये है प्रोटोस्टोमियो का। लेकिन इसमें क्या हो सकता है, कैन बी, तो यहाँ पे थोड़ा एक्सेप्शन है, अपवाद है ये, थोड़ा थोड़ा इसमें वो थोड़ा वो है, थोड़ा वो है, एक्सेप्शनल केस है। तो इट कैन बी स्काइजोसिलस और एंट्रोसिलस। और लेकिन जो सिलोम जो होता है मेनली क्या होता है, ये एनिमल होते हैं, ये इसका मैं लोफोफोर जो लोफोफोर जो एनिमल होते हैं उसमें सिलोम हॉलो टेंटिकल का डिस्क होता है, एक हॉलो क्राउन होता है बॉडी के ऊपर। इसका आप गूगल पे देखोगे ना, अभी मैं अगर मेरी ये खत्म होने के बाद फोटोग्राफ वगैरह ओपन होता है तो बता दूंगा। तो ये इसके जो एक ट्रांसपेरेंट से एनिमल होते हैं, और बहुत ही तो और उनके जो टेंटिकल्स बेयरिंग होते हैं, और टेंटिकल्स क्राउन के ऊपर एक क्राउन होता है, उसके ऊपर टेंटिकल्स होते हैं, और उनका माउथ होता है वो उतना कॉन्स्पियस नहीं होता। और जो वो जो टेंटिकल उनके अंदर का जो हॉलो स्पेस है ना, दैट इज एक्चुअली सिलोम। और वो सिलोम को हम क्या कहते हैं, लोफोफोर कहते हैं। लोफोफोर का मतलब ही होता है हॉलो टेंटिकल्स, और तो उनका सिलोम कहाँ पे है, मेनली टेंटिकल्स के अंदर, एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड लोफोफोरेट सिलोमेट। ये एक्चुअली एक पूरा टीवाई में पहले ये टाइम पे एक माइनर फाइला, ब्रैकियोपोडा, ब्रायोजुआ, ये सारा एक टॉपिक था। अभी के सिलेबस में शायद ये निकाल दिया है टीवाई के, पहले ये पूरा इनके कैरेक्टरिस्टिक्स का एक पूरा एक टॉपिक था। तो ये माइनर फाइलों का एक अलग से टॉपिक अगर पढ़ना है तो डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। ब्रायोजुआ, एक्टोप्रोक्टा, ब्रैकियोपोडा। आप भी थोड़ा वर्कआउट करो, मैंने इतना वर्कआउट किया। आप भी अगर आपके पास कोई नया टर्म आता है, अगर आपको जानकारी चाहिए, समझ में नहीं आया, रट्टा नहीं माना है, कैसे दिखते हैं, तो उनके गूगल इमेज पे डालो, विकीपीडिया पे देखो, इतने अच्छे अच्छे आपको इमेज मिलेंगे, रियल इमेज मिलेंगे, फोटो ड्राइंग इमेज मिलेंगे। तो बहुत अच्छे अच्छे नेट पे बहुत सारा अवेलेबल मटेरियल है। तो ये मेनली लोफोफोर सिलोमेट समझ में आ गया। लोफोफोर क्या है कि जो क्राउन होता है उसको टेंटिकल्स होते हैं, वहां पे जो स्पेस है अंदर, वो जो है वो हॉलो टेंटिकल्स है, वही वो लोफोफोर है, वहां पे ही उनका सिलोम है। वो सिलोम का फॉर्मेशन का तरीका दो में से कोई भी हो सकता है, इट कैन बी स्काइजोसिलस और एंटेरोसिलस। तो उसमें कौन से फाइलम आते हैं लोफोफोरेट में, फोरोनिडा, ब्रायोजुआ और एक्टोप्रोक्टा, ब्रैकियोपोडा। फिर स्काइजोसिलस, स्काइजोसिलस क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ म्यूजोलम से जो बनता है उसमें। तो आपके सारे जो फाइलम, अब ये नए नाम है आपके लिए, पेरिप्यूलिडा, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। मेनली आपके जो बड़े मेजर फाइलम है, मॉलुस्का, ये सारे माइनर फाइला है। मॉलुस्का, एनेलिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, ये आपके जो मेजर फाइलम है। उसके अलावा भी छोटे जो बहुत सारे माइनर फाइलम है, वो सारे किसमें आते हैं, वो आते हैं स्काइजोसिलस सिलोम में। तो इसमें कौन से आते हैं, ड्यूटेरोस्टोमिया में। ड्यूटेरोस्टोमिया में आता है एंटेरोसिलस सिलोमेट, एक ही है उसमें, सिर्फ एक ही सब डिवीजन है, दो सब डिवीजन नहीं है। एंटेरोसिलस मतलब कि आउट पॉकेटिंग हो गई, यहाँ पे लिखा है ना, सिलोम इज एंटेरोसिलस सिलोम इन विच सिलोम इज ओरिजिन एज अ आउट पॉकेटिंग एज अ पाउचेस ऑफ द एम्ब्रियोनिक गट। आर्केंटेरॉन जो है, एम्ब्रियोनिक जो गट है, वो बाहर की तरफ धक्का देती है मेसोडर्म के ऊपर, तो मेसोडर्म वहां पे उसकी जगह पे जैसे हला रही है, तो मेसोडर्म आउट पॉकेटिंग से अपनी जगह से हल रहा है। अल्टीमेटली मिजोरम के बीच में स्प्लिटिंग होने से एक नया गट के जो पाउचेस हैं, गट तो वहां की वहां रहेगी, उसके आउट पॉकेटिंग है, वो गुब्बारे से बाहर निकले, वो आपस में फिर बाहर सेपरेट यूनिट हो जाएगा। अल्टीमेटली वो सारे सेपरेट जुड़ जाएंगे और मिजोरम के बीच में ठहर जाएंगे। अल्टीमेटली दोनों साइड के गट से वो दोनों पॉकेट, बड़े बड़े पॉकेट मिल जाएंगे। अल्टीमेटली एक नया कैविटी जनरेट होगा, दैट इज द सिलोम। that theory, that way of the coelom form is called the anterocellus coelom. अब उसमें आते हैं, ये अलग अलग माइनर फाइल हैं, एक हेमिकोडेटा और एकाइनोडर्मा था। आप एग्जाम में अगर लिखने हो तो मेजर मेजर लिखो, और एक पूरा इसका चार्ट आप बना सकते हो। अब एक पेज पे एक कुछ चार्ट बनाओ। अगर मैं बोर्ड पे ये टॉपिक पढ़ा तो पूरा एक चार्ट बना के रख देता हूँ। कोटपाल की बुक में भी आपको ये चार्ट मिलेगा, एक ही पेज पे पूरा बनाया हुआ। तो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब मैं इसका देखता हूँ, मेरे पास मैंने एक देखी थी लोबोफोर्ड की इमेज है, शायद मैंने रखी है, देखता हूँ खुलती है कि नहीं। छोटा सा इमेज है, हाँ। ये एक लोफोफोर्ड एनिमल है इस तरह का, यहाँ पे टेंटिक क्राउन है ये, और क्राउन पे है ये, देखो कितना उसका हेड है, उतना डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हम। और साइज में बड़ी नहीं हो रही इसकी, ओके।
ठीक है, तो ये थोड़ा आपको गूगल इमेज पे भी मिल जाएगा। मेनली यहाँ पे टेंटिकल्स हैं और ये यहाँ पे क्राउन है, तो यहाँ पे इनके टेंटिकल्स के अंदर जो सिलोम है उसको हम बोलते हैं लोफोफोर। लोफोफोर मतलब होलो टेंटिकल्स। तो वहां पे सिलोम है, वो सिलोम कैसे बनता है, एंटेरोसिलस या स्काइजोसिलस से। तो यहाँ पे ये टॉपिक भी कंप्लीट हो रहा है। और जैसे मैंने बताया था, इसके जो मेन रेफरेंस हैं वो आप देख लो, इसमें आप ऐड कर लो। इन्वर्टिब्रेट लिखा नहीं है, इन्वर्टिब्रेट ज़ूलॉजी बाय आयल कोटपाल, और ये सारे मेन इसके वो हैं। एक बार फिर से थोड़ा क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या कंप्लीट किया। सबसे पहला जो डोमेन वाला स्लाइड था वो ये हायरार्की वाला, तो हमने आपको समझ में आ गया होगा इतने दिन से हम जो कर रहे हैं, करीबन ये चौथा या पांचवा लेक्चर है आई थिंक। तो ये जो है डोमेन क्या है, किंगडम क्या है, सब किंगडम क्या है, ब्रांच समझ में आ गया। डोमेन होते हैं एनिमेलिया, डोमेन होते हैं प्रोकैरियोटा यूकैरियोटा, हमारा काम का है यूकैरियोटा। किंगडम में एनिमेलिया प्लांटे होते हैं, हमारा काम का है एनिमेलिया। सब किंगडम में होता है मेटाजुआ, मेटाजुआ, मीजोजुआ, पैराजुआ, मेटाजुआ। मेनली सारे एनिमल मेटाजुआ के होंगे। पैराजुआ में पॉलीफेरा चला गया, प्रोटोजुआ के एनिमल चले गए। फिर मेटाजुआ के अलग अलग ब्रांच आए, है ना। ग्रेड डिवीजन ये सारे टर्मिनोलॉजी हमने सीख लिए। मेटाजुआ के अंदर ब्रांच आया यू मेटाजुआ मेनली, है ना। फिर उसके अंदर ग्रेड आए आपके प्रोटोस्टोमिया, ड्यूटेरोस्टोमिया। फिर डिवीजन आए, नहीं सॉरी ग्रेड आए, कौन से आए, बाइलेटेरिया, रेडियाटा, ठीक है। फिर बाइलेटेरिया के अंदर सारी बातें आई। बाइलेटेरिया के अंदर आए प्रोटोस्टोमिया, ड्यूटेरोस्टोमिया। फिर प्रोटोस्टोमिया भी आपने तीन सब डिवीजन, चार सब डिवीजन बताए, ए सिलोमेट, सुडोसिलोमेट, लोफोपोर सिलोमेट, स्टाइलोसिलोसिलोमेट। और अगर ड्यूटेरोस्टोमिया है तो उसमें आपने बताया एंटेरोसिलोसिलोमेट। अगर कोई सुपर फाइलम है तो आपको नाम लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना है। जैसे एस्केलेंथस सुपर फाइलम है, फाइलम निमेटोडा है, सब फाइलम नहीं है। डायरेक्टली एनिमल इज एस्केरिस क्लास, उसका जो भी है फेज मीडिया या फेज मीडिया, वो आपको याद रख के वो लिखना है। तो इस तरह से आपका डिस्क्रिप्शन कंप्लीट होता है। तो इस तरह से ये हमारा काम है यहाँ क्लास तक इस क्लासिफिकेशन देना। ये सारी कैटेगरी हमें नहीं है, लेकिन कोई पर्टिकुलर एनिमल टाइप पढ़ रहे हैं तो आपको याद रखना है। फिर सब क्लास तक क्लासिफिकेशन देने के बाद आपको एनिमल का छोटा डिस्क्रिप्शन देना है। एक बार मैं कहा हम अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर से हम फाइलम वाइज पढ़ना स्टार्ट करेंगे, प्रोटोजोआ पॉलीफेरा के सारे कैरेक्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से वी विल गो। तो यहाँ पे मेरा ये पूरा आउटलाइन क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। और यहाँ पे मैं लेक्चर जो है रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ।